Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Gopal Snacks Limited earnings call hosted by Emkay Global Financial Service Limited. As a reminder, all participants' line will be in listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Nitin Gupta from Emkay Global Financial Services Limited. Thank you, and over to you, sir. Thanks, Ishan. Good afternoon, everyone. I would like to welcome the management and thank them for this opportunity. We have with us today Vipin Bhai Advani, Chairman and Managing Director, Naveen Gupta, Chief Business Officer, and Regan Rethata, Chief Financial Officer. I shall now hand over the call to the management for the opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Nitin. Good afternoon, and thank you for joining us for the earnings call. We hope you all got a chance to go through our investor presentation uploaded on the stock exchange. We will share our key operating and financial highlights for the quarter and half year ended September 30th, 2025. Q2 FY 2026 was a quarter of steady progress and operational enhancement for Gopal Snacks. Despite a dynamic market environment, we continue to strengthen our manufacturing footprint, deepen market penetration, and enhance supply chain efficiency. Our focused execution and disciplined cost management enabled us to deliver improved profitability sequentially, reflecting the underlying resilience of our business model. Revenue from operations stood at 375.7 crore, up 16.6% quarter-on-quarter, supported by a strong traction in other product segment and a steady recovery in the core portfolio. EBITDA margin improved to 6.4%, reflecting the benefits of operational efficiencies and prudent cost control, while our gross margin expanded to 26.4% amid easing input costs. For H1 FY 2026, revenue stood at 697.8 crores, with EBITDA margin at 5.6%, despite continued impact from the Rajkot 1 facility fire. During the quarter, we received an interim insurance payment of rupees 19.99 crore related to Rajkot facility, with reinstatement work currently underway. Our Gondal unit continues to ensure uninterrupted production and supply, reinforcing our manufacturing resilience. To further strengthen our regional footprint, we have entered into long-term agreement for third-party manufacturing facilities at Hiriyur, Karnataka, and Kashipur, Uttarakhand. Together, these facilities add over 10,000 metric tons per annum of capacity, enabling us to serve southern and northern markets more efficiently and reduce lead times. We also focus on enhancing brand presence and consumer engagement during the quarter. Our association as the official snack partner for the Filmfare Awards 2025 significantly elevated Gopal Snacks brand visibility across television, digital and social media platforms. Alongside refreshed packaging, improved visibility at airports and modern trade outlets, and increased participation in festive promotions have further strengthened our brand recall and market reach. Operationally, the Modasa plant ramped up smoothly, improving distribution coverage across Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Our advanced distribution management system and ERP integration have streamlined dealer-level visibility and enhanced inventory planning, resulting in improved service levels across core and focus markets. By Q2 FY 2026, we had 858 active distributors, reflecting steady expansion and better on-ground execution. Looking ahead, our priorities remain centered on expanding market presence, driving efficiency through technology integration, and innovative across product lines. We continue to explore new opportunities in under-penetrated regions, while our sustained investment in branding and distribution will help us capture incremental growth in India's fast-evolving packaged snack market. With a strengthened operational foundation, expanding capacity base, and a growing distribution network, Gopal Snacks is well positioned to deliver sustainable growth
and enhance value for all stakeholders in the quarter ahead. I would now like to invite our Chief Financial Officer, Mr. Regan Raidata, to share his perspective on the financial performance during the quarter. Thank you, Naveen ji. So, good afternoon, everyone. Let me take you through the key financial highlights for the quarter and half year ended 30th September 2025. First, starting with the quarterly performance. So, during Q2 FY26, we achieved revenue from operations of 375.7 crores, registering of 16.6% sequential growth. Gross profit for the quarter ended stood at 99.2 crores, translating to a gross margin of 26.4% compared to 26% in the previous quarter. Gross profit was driven mainly by the subsidy income and the steady raw material prices. EBITDA for the quarter was 24.1%, reflecting a margin of 6.4%. Sequentially, margin expansion was aided by operating leverage and prudent control over discretionary spend. Profit after tax stood at 25.7%, resulting in a PAT margin of 6.8% for the quarter. This includes the exceptional income of rupees 21.5 crores, mainly due to interim insurance payment received from insurance company on account of fire in our Rajkot facility. Now moving on to the half-yearly performance. For H1 FY26, revenue from operations stood at 697.8 crores, while EBITDA came at 39.4%, reflecting a margin of 5.6%. Profit before tax, before exceptional items, stood at 18.7 crores, while profit after tax was 28.2 crores with a margin of 4%. YOY margins for the period, for the half year and for the quarter were impacted due to raw material price inflation, mainly due to the duty impact. Our sequential improvement demonstrates the success of our cost-saving initiatives and stable performance from our alternate production base at Gondal. As we look forward for the next half of the financial year, our Modasa plant has started the trial production, and benefit of which will be shown partially in our Q3 results and fully in Q4 results. As we look ahead, our strategy remains focused for expanding market presence, improving operational efficiency, and driving innovation across our core and emerging product categories. With a solid financial base, resilient manufacturing network, and disciplined capital allocation, Gopal Snacks is well positioned to sustain its growth momentum in the coming quarters. Thank you. Over to you, Nitin. Nitin? Hello, Ishan. Yes, sir, can we start the question answer session? तो नितिन, क्योंकि मिस्टर बिपिन हरबानी भी हमारे साथ में हैं, चेयरमैन सर हमारे साथ में हैं, तो अगर जहाँ जहाँ संभव हो, अगर बीच बीच में क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. Okay. Thank you very much. We will now begin the question answer session. Anyone who wishes to ask question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Nitin Gupta from Emkay Global Financial Services Limited. Yeah, thanks for taking my question. My first question pertains to given the GST rate reduction. So, like other FMCG companies have also noted that there was a trade-related disruption. So, of the 7% decline in our top line, how much of this would be attributed to GST-related hiccups? लेकिन जीएसटी का हिकअप क्या हुआ कि सितंबर में बहुत सारी एफएमसीजी बिगीज कंपनी ने 5 सितंबर के आसपास ही डीप डिस्काउंटिंग चालू कर दिया था टू द ट्रेड एज वेल टू द चैनल. कंज्यूमर को तो 22 सितंबर के बाद पास होना चालू हुआ था, तो इसका इम्पैक्ट हमको कोर स्टेट में कम दिखाई दिया, लेकिन फोकस्ड स्टेट्स में ज़्यादा दिखाई दिया
और अब जाके नवंबर के फर्स्ट वीक में अभी उसके कारण जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था वो अब जाके नॉर्मलाइज होना चालू हुआ है। आप कुछ एक क्वांटम बता सकते हैं क्या कि अपने रेवेन्यू पे इतना परसेंटेज का प्रेशर आया होगा बिकॉज ऑफ दिस? मोटा मोटा सितंबर में वैल्यू टर्म में 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का उसका इम्पैक्ट आया, और अक्टूबर में फिर वो टेपर डाउन हो गया, तो अक्टूबर में 3-4 करोड़ रुपए का आया, टोटलिटी में 15 करोड़ रुपए का उसका इम्पैक्ट आया। श्योर, थैंक यू। एंड दूसरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू योर मोडासा कमिश्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसे मोडासा का कमिश्निंग अपना डिलेड हो गया, तो सॉर्ट ऑफ पोस्ट फेस्टिव सीजन, तो आपका जो गाइडेंस था फॉर सेकंड हाफ उस पे थोड़ा आप अपडेट देंगे? व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली द सेकंड हाफ गोना लुक लाइक? देखिए नितिन, कमीशनिंग जो है 4 से 5 महीने डिले हुआ है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि अगर टाइम से कमीशनिंग होता है तो लॉस्ट कंज्यूमर बेस को हम टाइम से कवर कर पाएंगे। तो अभी जो सिचुएशन है कि हमारे वहाँ पे 3 हीरो प्रोडक्ट जो है उसका बिलिंग वहाँ से चालू हो गया। हम हर रोज वहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, मोटा मोटा 26 प्रोडक्ट हमको ऐड करने हैं, तो नवंबर एंड तक सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम असेस कर पाएंगे इन नेक्स्ट 3 मंथ्स कि हम अपने लॉस्ट कंज्यूमर बेस का कितना रेवेन्यू कवर कर पा रहे हैं विद द रन रेट। तो असेस अभी उसका एस्टिमेशन देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। Operator, you can go ahead with the question and answer. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Resham Mehta from Green Age Wealth. Please go ahead. थैंक यू सर। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये मोडासा प्लांट अगले 3 महीने में हम सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, बट हमारा जो गाइडेंस था बेसिकली 1750 करोड़ रेवेन्यू करने का पूरे साल का, विच इम्प्लाइज कि हमें H2 में 1000 करोड़ रेवेन्यू करना है। तो वो भी गाइडेंस रिवाइज करेंगे या वो सेम रहेगा? रेशम जी, पहली बात तो ये कि थोड़ा इंटरप्रिटेशन में क्लैरिटी देता हूँ। 3 महीने में नहीं, इस महीने के एंड से ही हमारा प्रोडक्ट बास्केट मोडासा से कंप्लीट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? या श्योर, अंडरस्टूड। और दूसरा बात ये है कि गाइडेंस में डेफिनेटली गाइडेंस जो है मीट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब इनिशियली हम लोग बोल रहे थे कि जुलाई अगस्त में हमको कमीशनिंग हो जाएगी, तो हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे थे कि हमको अपने फेस्टिव सीजन में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा लॉस्ट कंज्यूमर बेस जो सपोज एक्स था वो उतना ही रहेगा और हम टाइमली कवर कर लेंगे, तो उसका सब्सिक्वेंट बेनिफिट हमको H2 में भी मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कमीशनिंग डिले हुई उसके कारण अभी जो रन रेट आएगा हमारा दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर जनवरी फेब, उसके बेस पे ही हम मतलब अपने नेक्स्ट ईयर के नंबर्स भी सेट करेंगे। अभी वो गाइडेंस तो मीट होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन इस साल के फाइनल नंबर कितने होंगे हम इसलिए नहीं अभी बता पाएंगे आपको, क्योंकि जब मोडासा से हमको फुल फ्लेजेड सप्लाई मिलेगी तो हम कितना बेनिफिट कितनी स्पीड से ले पाते हैं। जैसे हमारा मार्केटिंग का भी अभी थोड़ा टीवी एडवर्टीजमेंट भी रिलीज किया है हमने, थोड़ा सप्लाई भी इम्प्रूव हो जाएगी, तो हम कितना उसका रन रेट में मतलब तकरीबन 8-10 करोड़ रुपया पर मंथ बेनिफिट मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है। तो गाइडेंस तो मीट नहीं हो पाएगी, लेकिन कितना बेनिफिट होगा अभी एसेस करना जरा मुश्किल है। तो ये मान के चले कि जो H1 में हमारा रेवेन्यूज लगभग 700 करोड़ था, तो एटलीस्ट उतना तो हम कर पाएंगे 700 करोड़ H2 में, या उससे तो मतलब थोड़ा बेटर ही होगा, राइट? या वो भी कहना डिफिकल्ट है?
वो उससे ज़्यादा होगा। मैं ऐसा बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारा 11 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था, तो नवंबर ही हमारा पहला ऐसा महीना होगा इस साल में जब हम पिछले साल के नंबर्स को, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मंथ के नंबर्स को क्रॉस कर देंगे। अभी तक एक आध बार हुआ है कि हम 4-5 करोड़ रुपए से उस नंबर से पीछे रहे, लेकिन नवंबर में डेफिनेटली हम लास्ट ईयर के नवंबर के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से क्रॉस कर देंगे। एंड उसके बाद तो हमारे नंबर डाउन ही थे, डेफिनेटली 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड। और जो मार्जिन्स है हमारे अभी, जो 26% ग्रॉस मार्जिन है, उसमें सब्सिडी इनकम कितना था? सब्सिडी इनकम इस क्वार्टर में अराउंड 5.3 करोड़ था। एंड ये कहाँ पे हमने रिकॉग्नाइज किया है? हमने इसको अदर इनकम में दिखाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ये मतलब कितना सब्सिडी एक्सपेक्टेड है एवरी क्वार्टर, एंड ये कब तक आएगा? एंड दिस सब्सिडी इज फॉर व्हाट बेसिकली? ये सब्सिडी जो हमारा है नागपुर प्लांट का है, वो सब्सिडी है। तो नागपुर प्लांट में लगे हैं विच इज पर्टेनिंग टू जीएसटी के साथ लिंक रहता है, वो सब्सिडी है। और कितना है, मतलब एवरी क्वार्टर कितना एक्सपेक्टेड है ये सब्सिडी इनकम, और कब तक आएगा ये सब्सिडी इनकम ऐसे एवरी क्वार्टर एक्सपेक्टेशन देना मुश्किल है, बिकॉज ये जीएसटी के साथ लिंक रहता है। सेकेंडली अगले 3 साल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब्सिडी का इनकम हमें आता रहेगा। ओके। एंड ये जो इनपुट कॉस्ट पे क्या आउटलुक है हमारा? जो सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस है, आई मीन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बताता है ब्रॉडली स्टेबल है, बट थोड़ा बहुत मैदा और चना में कुछ इन्फ्लेशन दिख रहा है। तो इज दैट अंडर कंट्रोल, या यू फील दैट कुछ, इज देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट? बेसिकली ये 26% ग्रॉस मार्जिन से हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, या थिंग्स कैन ओनली इम्प्रूव फ्रॉम हियर? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी बैलेंस जो ईयर बचा है तो वहाँ पे मोरलेस इसके आसपास स्टेबल प्राइसेस रहेंगे। 3-4% अपवर्ड शायद मूवमेंट आ सकता है, बट नॉट मच इन एक्सपेक्टेशन। तो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में वी आर एक्सपेक्टिंग इसी रेंज पे हम रहेंगे। ओके। एंड एबिटा मार्जिन जो हमारा Q2 में 6.4% था, तो हमने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि Q4 एग्जिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन हमारा करीबन 8-9% हो सकता है। उस पे भी कुछ रिविजन रहेगा, या दैट गाइडेंस स्टिल होल्ड्स? जैसे नवीन जी ने बताया कि हम अभी एसेस कर रहे हैं सिचुएशन को, तो सेल्स का हमारा जो नंबर एक बार असेसमेंट हम कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे क्या मार्जिन गाइडेंस करेंगे। ओके। एंड दूसरा था कि मतलब जो लॉस्ट कैपेसिटी थी फायर के वजह से, तो वो 2 प्लांट से आने वाली थी, करेक्ट? एक तो अपना ये जो मोडासा प्लांट है जहाँ पे ट्रायल रन चालू हो गए, और दूसरा जो था 2 राजकोट प्लांट से आने वाला था। तो वो 2 राजकोट प्लांट में भी अभी कमिश्निंग में डिले है। आई थिंक वो Q4 तक एक्सपेक्टेड था, या वो ऑन ट्रैक है फिलहाल के लिए? तो हाँ, सो वो ऑन ट्रैक चल रहा है। तो एक तो वो है कि हमारा प्रोडक्शन का अभी कहीं कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो भी जो राजकोट में होगा वो गोंडल से शिफ्ट होकर राजकोट में आएगा। तो वो सिर्फ जगह का रिलोकेशन होगा, उसमें कहीं हमारा प्रोडक्शन लॉस अभी नहीं है। तो फिर हम ये इतना मोडासा प्लांट रेडी है तो भी हम क्यों, मतलब व्हाई आर वी नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ रैम्पिंग अप द रेवेन्यूज? बिकॉज इन एनी केस जो अभी मोडासा नहीं रैम्प अप कर पाएगा, फॉर इंस्टेंस गोंडाल प्लांट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है ना, देन व्हाट इज द इशू? मतलब इस पे थोड़ा आप इलैबोरेट कर सकते हैं? हमारे चेयरमैन विपिन भाई इसका आंसर देंगे। इसमें ना इश्यू वो है कि गोंडल प्लांट में हम सब नमकीन बनाते हैं, और मोडासा प्लांट में हमारा चिप्स का प्लांट है, और फैंट से रो पैलेट और फ्राई वो मोडासा प्लांट में है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को 2 जगह से माल जाता है, तो उसको दोनों का ट्रक अलग अलग मंगवाना पड़ता है। तो उसको
कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर को क्लबिंग करना पड़ता है, मतलब एक ट्रक में 2 या 3 का माल भेजना पड़ता है, तो सभी का कभी ऑर्डर एक साथ नहीं आता है तो उसको माल डिले मिलता है। वो हिसाब से उसका सेल थोड़ा इफेक्ट आता है सेल्स में। तो एक ही जगह से सभी प्रोडक्ट जाएगी तो उसका दूसरे के साथ क्लबिंग की ज़रूरत नहीं रहती, वो पूरी की पूरी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रक रहती है, तो वो माल उसको तुरंत मिल जाता है, तो उसको सेल वो हिसाब से थोड़ा बढ़ जाता है। नहीं, पर हम ये जो मोडासा प्लांट में भी जो बता रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर देंगे, हर एक दिन में हम एक प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं वहां से, तो भाई नवंबर एंड हमारा मोडासा प्लांट से भी सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो फिर उसको रैंप अप करने में मतलब देन क्या इश्यू है कि क्यों हम रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पे तो भी हम हम कॉन्फिडेंट नहीं है? मोडासा से सभी डिस्ट्रीब्यूटर को माल नहीं जा रहा है, हमारा सौराष्ट्र का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको माल गोंडल से जा रहा है। तो अभी हम जब गोंडल पे लोड कम होएगा तब हम चिप्स वगैरह है ना, पहले हम राजकोट में लाते थे, तो वैसे अभी हम ये गोंडल में ले जाएंगे, तो गोंडल से भी एक ही जगह से पूरे डिस्ट्रीब्यूटर को माल सौराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर को माल जाएगा, तब इसमें इफेक्ट मिलेगी। ऐसा जी, मैं इस आपके सवाल जो सेकंड क्वेश्चन था उसका जवाब देता हूँ। ये कॉन्फिडेंस का प्रश्न नहीं है। देखिए, अभी जो नवंबर में हमारा पर डे का रन रेट आ रहा है वो हेल्दियर दिख रहा है, तो हम असेस कर रहे हैं कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण डेफिनेटली बीच बीच में प्रोडक्शन का लॉस हुआ, बीच बीच और मैसिव लेकिन कंटिन्यूसली जो इशू था वो सप्लाई चेन डिसरप्शन था, उसके कारण हमारा अब जब सप्लाई स्मूथ हो जाती है तो हमको कितना इंक्रीमेंटल बिजनेस मिलता है। तो तकरीबन हमको जब स्मूथ सप्लाई हो जाएंगी तो 1 महीने में ही हमको उसका इंडिकेशन आना चालू हो जाता है कि अच्छा हमारा पर डे का रन रेट नाउ हैज मूव्ड अप फ्रॉम 4 करोड़ टू 4.5 करोड़। तो इसलिए हम, जैसे हमने पिछली बार गाइडेंस भी दिया था वो इस अजम्पशन पे दिया था कि भाई हमारा प्लांट चालू हो जाएगा मिड अगस्त तक, तो हम ये नंबर दे पाएंगे। तो हम वो गलती रिपीट नहीं करना चाह रहे कि हम आपको गाइडेंस देवें और फिर उसको मीट ना कर पाएं, तो इसलिए हम पहले इस बार असेस करेंगे कि हमारा सप्लाई स्मूथ होने के बाद पर डे रन रेट कितना आता है। फेयर इनफ। और एक जो रिलेटेड क्वेश्चन था, बिकॉज ये पूरा जो इशू है ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल एक फैक्ट्री से नहीं जा रहा है, राइट? तो डज दिस मीन कि जब तक वो राजकोट के भी जो 2 प्लांट्स है वो जब तक Q4 तक कमीशन नहीं हो तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, एंड वो राजकोट में 2 अलग प्लांट्स आ जाएंगे उसके बाद भी ये सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा या वो नहीं होगा? देखिए, वो तो है ना, ये राजकोट में आने के बाद ही प्रॉब्लम सोल्व होगा वैसा नहीं है, क्योंकि ये अभी जो गोंडल से नमकीन जा रहा है वो मोडासा में चालू हो चुका है, तो मोडासा से जब ये गाठिया वगैरह जाएगा तो गोंडल पे लोड कम होगा, तो गोंडल पे हम अभी जो प्रोडक्ट टाइम नहीं बना रहे वो भी चालू कर देंगे, और चिप्स भी मोडासा से गोंडल शिप करके डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो वो गोंडल से ही सब डिस्ट्रीब्यूटर को सिंगल जगह से माल मिलने लगेगा। अगर मैं क्वांटिफाई करके बताऊं आपके आंसर, आपको आप जो आंसर तलाश रही हैं, मोडासा से फुल प्रोडक्ट बास्केट मिलने के बाद हमारी सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो 90% तक रिड्यूस हो जाएगी। ओके, दिस वाज द नंबर जो आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये इधर रैंप अप हो जाएगा तो ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का प्रॉब्लम मोटा मोटा इट विल गेट सॉल्व। गॉट इट। एंड ये जो इंश्योरेंस क्लेम जो 20 करोड़ का जो मिला है, तो ये आपने एडहॉक बताया है, सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अभी भी कुछ फाइनल, मतलब दिस इज नॉट द फाइनल वन एंड अभी भी और कुछ आना बाकी है, बिकॉज हमने जो लॉस रिकॉर्ड किया था वो 47 करोड़ का था, जिसके अगेंस्ट अब तक हमें 20 करोड़ मिला है। ये एज एन एडॉक पेमेंट इसलिए था,
बिकॉज हमारा जो पॉलिसी है या हम जो इंश्योरेंस का हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो रीस्टेटमेंट बेसिस पे है। दैट मीन्स कि हम प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो जैसे जैसे रीस्टेट करते जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी उसके अगेंस्ट पैसा रिलीज करता जाएगा। तो ये फर्स्ट जो अमाउंट था वो हमने इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट किया था कि सिंस हमारा क्वांटम ऑफ लॉस काफी बड़ा है तो एज एन एडॉक पेमेंट हमें रिलीज करे, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने 20 करोड़ एडॉक पेमेंट रिलीज किया। बाकी हमारा नॉट ओनली इन वन इंस्टॉलमेंट, इट कैन बी 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स मोर जहाँ पे हमें पैसे मिले। एंड ये अभी कब तक एक्सपेक्टेड है बाकी के बैलेंस पेमेंट? वो जैसे कंप्लीट करते जाएंगे तो वो पैसे हमें मिलते जाएंगे। तो मतलब कुछ टाइमलाइन कुछ रहेगा इसका? इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो इस फाइनेंशियल ईयर में वी आर एक्सपेक्टिंग द सिमिलर अमाउंट जो अभी आया है इसके आसपास का कुछ अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल। ओके ओके। एंड ये जो प्रोडक्ट वाइज अगर मैं टोटल रेवेन्यूज करती हूँ तो दैट कम्स टू 349 करोड़, आपने जो प्रेजेंटेशन में जो ब्रेकअप दिया है। पर हमारा जो नेट रेवेन्यू है द टॉप लाइन इज अराउंड 370 करोड़। तो अगर इसका मैं डिफरेंस करती हूँ 370 माइनस 349 तो 21 करोड़ इज द नंबर। तो ये बेसिकली क्या है? अदर्स, मतलब अदर्स में भी अदर्स आई थिंक वो 2 क्लासिफिकेशन दिए आपने, अदर प्रोडक्ट्स एंड अदर्स करके। सो व्हाट इज दिस 21 करोड़? तो वहाँ पे कुछ एक्सेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल और वो था, वो अदर्स में आता है। सॉरी, एक्सेस सेल ऑफ मतलब जो नमकीन वगैरह रहता है, वेस्ट नमकीन रहता है, फिर कुकिंग पाम ऑयल रहता है, फिर कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जो आते हैं, वो सब उसमें इंक्लूड होता है। तो ये आप बोल रहे हो रॉ मटेरियल्स, बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स एक्सेस थे वो बेचे? बेकरी प्रोडक्ट है वो आ जाते हैं उसमें, फिर यूज कुकिंग ऑयल पाम ऑयल जो रहता है वो आ जाता है, फिर पोटैटो का स्टार्च आ जाता है, वेस्ट नमकीन आ जाता है, वो सब उसमें इंक्लूडेड रहता है। बट इज दिस नंबर ये थोड़ा सा हाई है इस टाइम या जनरली इट इज यही रेंज में होता है? जनरली इसी रेंज पे होता है। ओके ओके। एंड लास्टली ये जो इनऑर्गेनिक के लिए जो आई थिंक अप टू 200 करोड़ का जो मेंशन किया हुआ है, सो ये मतलब हम जो एक्विजिशन सोच रहे हैं या देख रहे हैं, सो कुछ आइडेंटिफाई हुआ है या एंड इफ नॉट देन हम कौन से काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं? स्नैकिंग कैटेगरी है, कौन सी ज्योग्राफी में है, या मतलब इट इज आउटसाइड गुजरात, या हवा भी मतलब इसके बारे में हम कैसे सोचते हैं कि अगर कुछ एक्वायर करना है तो किस स्पेस में, कौन सी ज्योग्राफी में करना है? तो मैडम अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अभी देख रहे हैं। बट हाँ, एक वो रहेगा कि हम एक्वायर करेंगे वो सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री में होगा, इफ नॉट सेम, क्योंकि मतलब सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री व्हेन आई से इट वुड बी इन द फूड बिजनेस ओनली। और ये प्रिडोमिनेंटली अभी हम गुजरात के ऊपर एक्वायर करने का ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात में ही हम सोच रहे हैं। ओके। वुड बी नॉट द सेम नमकीन बिजनेस, वहाँ पे फोकस कम है हमारा। राइट राइट। ओके, थैंक यू सब क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Ishant Lalwani from Ashika Institutional Equity. Please go ahead. हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। सर लास्ट ईयर आपने मेंशन किया था डेट हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 70% तक हो जाएगा ऑन FY27, बट बाद में राजकोट का इंसिडेंट हुआ। एंड अभी सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे क्या अपडेट है एंड हम 70% का टारगेट कब तक अचीव करने का आप सोच रहे हैं? यूटिलाइज टारगेट एक another 2 to 2.5 kind of a time. हेलो, yes sir, you are audible sir.
मैं ये बोल रहा हूँ अभी हम लोग 41 से 45% के आसपास हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। वो 70 तक पहुँचने के लिए अराउंड 2 से 2.5 साल और लगेंगे। ओके। एंड अभी हमारा जैसे बेसन, जी सॉरी, ये सर अभी जैसे हमारा बेसन में कैपेसिटी 70% तक है, सो हम उसमें कुछ एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, कुछ केपेक्स गाइडेंस अपार्ट फ्रॉम जो हम 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन 20 करोड़ का केपेक्स और है राजकोट का। इसके अलावा भी कोई और केपेक्स अभी आएगा नेक्स्ट ईयर? नहीं, बेसन में हम नागपुर में एक बेसन प्लांट लगा रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है, वहाँ पे थोड़ा सा आएगा। और कहीं बेसन की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है और फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर। एंड सर ये एक्विजिशन या एक्सपेंशन के लिए हम इंटरनल एक्रूवल से करेंगे या डेट हम करेंगे या फर्दर डाइल्यूशन होगा इक्विटी का? क्योंकि अभी भी 81% आई थिंक अभी भी सर आपके पास प्रमोटर होल्डिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस वो 75 तक आपको रीच करना होगा, तो फंड कैसे होगा सर आगे का? वो उसका हम अपडेट जैसे ही, अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग अभी एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढ रहे हैं, तो एज एंड व्हेन वी फाइनलाइज हम पूरा आपको अपडेट दे देंगे कैसे उसका फंडिंग वगैरह अरेंजमेंट। सर इस क्वार्टर जो हमारा Q1 इंक्रीज हुआ है उसमें फेस्टिव सीजन का कितना होगा? फेस्टिव सीजन का मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सर फेस्टिव सीजन की वजह से जो मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो हमारा इस क्वार्टर आया है Q1 बेसिस पे, उसमें फेस्टिव की वजह से, दिवाली थी एंड अदर फेस्टिवल्स थे, उसकी वजह से कितना ग्रोथ हमने इस बार बुक किया है, एक सर्टेन आइडिया हो सर? रात में टिपिकली 2 फेस्टिवल ज़्यादा जोर से मनाए जाते हैं। एक तो जन्माष्टमी सौराष्ट्र में काफ़ी इससे मनाया जाता है, और दूसरा दिवाली। दिवाली तो अक्टूबर में थी, उसके नंबर्स तो H1 के नंबर में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो सितंबर में हमको फेस्टिव की वजह से जितना नॉर्मली जंप मिलता है, परसेंटेज टर्म में तो मोटा मोटा उतना ही मिला, लेकिन क्योंकि हमारा बेस ही लोअर था और सप्लाई चेन के इश्यूज थे, उसको क्वांटिफाई करके ऐसा बोले तो एक 10 करोड़ रुपए के आसपास हमको उस महीने में फेस्टिवल के कारण जंप मिलता है, पॉजिटिव जंप मिलता है। ओके सर। एंड सर जैसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अच्छा होगा, सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियलाइजेशंस और इम्प्रूव होंगे जो आज के लेवल से, या इसी स्टेबल रहेंगे कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए? रियलाइजेशन हमारे 2-3 कारण से इम्प्रूव होंगे। पहला कारण है कि गवर्नमेंट ने जो GST का रिलीफ दिया है, तो हमने छोटे पैकेट्स के अंदर अपना ग्रामेज बढ़ाकर कंज्यूमर को कुछ एक्सटेंट तक उसका बेनिफिट दिया है। लेकिन एज ए कंपनी हम पहले से ही कंज्यूमर को ज़्यादा वजन दे रहे थे, तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल वेटेड एवरेज से GST एलिमेंट के कारण 1-1.5% का हमारा रियलाइजेशन इम्प्रूव होगा। सेकेंडली, अभी हम जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं हमने, टू नेम कपल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे पॉपकॉर्न हमने इंट्रोड्यूस किया है। अभी हमने वेफर बिस्किट लास्ट क्वार्टर में एक इंट्रोड्यूस किया था, उसका रन रेट जैसे अभी 50 लाख का आ रहा है, जो अभी हमने खाली गुजरात में उसको लॉन्च किया था, अभी पैन इंडिया में लॉन्च कर देंगे, दैट विल कॉस्ट 1 crore रुपीज। अभी एक और प्रोडक्ट हमने नॉन पाम ऑयल बेस्ड जो है वो रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे रियलाइजेशन बेटर आए। तो रियलाइजेशन हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण भी इम्प्रूव होगी और अदर फैक्टर से भी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्ट मिक्स जो है हम इम्प्रूव करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। एंड सर अभी हम 5 रुपीज प्राइस पॉइंट का रिडक्शन है, वो इस क्वार्टर में 66% से मैं उसको बोलूँगा इम्प्रूव होकर 62% हुआ है। एंड सर अभी हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा बहुत बढ़ेगा, सर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सो हम डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप कुछ समझाएंगे सर? अभी हम नए मार्केट्स कौन से टारगेट कर रहे हैं, कौन से रीजन एक्सप्लोर कर रहे हैं, या विद इन गुजरात ही हम एक्सपेंशन करेंगे? अभी गुजरात में हम डेप्थ बढ़ाने की कोशिश
करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस कमेंट्री में बोला था कि हम गुजरात की ज़्यादातर मार्केट में डबल सर्विस देने के लिए एम कर रहे हैं। तो हमने इनिशिएट करके उसको बीच में एक पॉज लेना पड़ा था, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारा सप्लाई चेन ही मैनेज नहीं हो रहा था, तो वो कॉस्ट उस समय बढ़ाने का फिर हमने पॉज दिया। लेकिन अभी हमने उसको री इनिशिएट किया है और सप्लाई चेन भी मैनेज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा और एडवर्टीजमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुजरात में हम डेप्थ पे फोकस करेंगे और जब यहाँ पे हमारी सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी तो नागपुर फैसिलिटी के 350 किलोमीटर की विसिनिटी में ही हम लोग विड्थ और डेप्थ बढ़ाएंगे वहाँ पे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि हमने जैसे काशीपुर में उत्तराखंड में थर्ड पार्टी टाइप किया है, तो वहाँ पर भी हम थोड़ा डेप्थ बढ़ाएंगे। इसमें महीने से थोड़ा थोड़ा माल जाना चालू हुआ है। और कर्नाटका में जो हिरियो थर्ड पार्टी टाइप किया है, उसका रिफ्लेक्शन अदर स्टेट्स में आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उसमें सितंबर में माल जाना चालू हो गया था। सर आपने अभी उत्तराखंड का बताया, सो हम वहाँ पे नॉर्थ रीजन को केटर करने का सोच रहे हैं आगे, राइट? वहाँ से हम वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी तक केटर करेंगे। ओके। एंड सर वहाँ हम नए वेयर हाउसेस एडिशन करेंगे अपने अपने गुड्स के लिए, या हम कैसे एक्सपेंशन का सोच रहे हैं उस पर? तो हमारा थर्ड पार्टी अरेंजमेंट है, वहाँ पे हम पूरा प्रोडक्ट बास्केट बना ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे। उन लिमिटेड प्रोडक्ट की सेल पे ज़्यादा कैसे करें, तो हमको उसके लिए वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री में सीधे ट्रांसपोर्ट ही जाएगा सीधे। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Sri Narayan from Baroda PNP Paribas AMC. Please go ahead. हाय, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्वार्टर में आपने कहा था कि आपका ये नागपुर फैसिलिटी उसका यूटिलाइजेशन 18% है एंड गोंडल फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन आई थिंक 62-61% था। सो उससे फेस्टिव डिमांड कैटर हो जानी चाहिए थी, ऐसा आपने हाईलाइट किया था। तो बट स्टिल we were not able to meet festive demand. तो can you highlight क्या हुआ था? देखिए, जब हम प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो टिपिकल हमारे इंडस्ट्री में हम बात करते हैं नंबर ऑफ ड्रायर्स पे। नागपुर में ऐसे हमारे को कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारा उस बेल्ट के अंदर जो नॉन कोर स्टेट्स हैं हमारे, लाइक आउटसाइड गुजरात, वहाँ पे हम लीडर ब्रांड नहीं, फेस्टिव सीजन में हमको वहाँ नहीं मिलता है। हम 5 रुपीज प्राइस पॉइंट के ब्रांड है लार्जली उस बेल्ट के अंदर। गुजरात में क्योंकि एज ए ब्रांड हम स्ट्रॉन्गर हैं, तो हमको बड़े पैकेट्स में और इवन स्मॉलर पैकेट्स में फेस्टिव का बेनिफिट मिलता है। तो गुजरात परसेंटेज टर्म में तो हमको उतना बेनिफिट मिला ही जितना हमको फेस्टिव सीजन के दौरान मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारा बेस ही इरोडेड था, तो एब्सोल्यूट टर्म, अगर हमारा बेस ठीक ठाक होता तो एब्सोल्यूट टर्म में हमको 15-16 करोड़ का बेनिफिट मिलता। रिड्यूस बेस के ऊपर हमको 8-10 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिला। तो उस चीज का प्लांट की कैपेसिटी से ये दो कनेक्शन है, वन परटेनिंग टू गुजरात, अनदर आउटसाइड गुजरात। तो बेसिकली आप बोलो नागपुर से आपने आउटसाइड गुजरात कैटर किया, गुजरात मार्केट में आपको लॉस हुआ कैपेसिटी ना होने की वजह से। करेक्ट। नागपुर से तो हम वैसे भी महाराष्ट्र कैटर करते हैं, एमपी कैटर करते हैं, छत्तीसगढ़ कैटर करते हैं, यूपी कैटर करते हैं, तेलंगाना, जेपी, ये सब कैटर करते हैं हम लोग। तो नागपुर गुजरात से यूटिलाइजेशन था लास्ट क्वार्टर का सिमिलर ही है हमारा नागपुर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो लॉजिस्टिक्स की वजह से हमने यूज नहीं किया नागपुर का कैपेसिटी गुजरात के लिए। हाँ, नागपुर से यहाँ पे माल लाना कोई सेंस नहीं बनता है। राइट। No, but just thought कि maybe to retain market share थोड़ा margin loss if it made sense, but of course you would have better idea.
बट आई ट्रेन थॉट मार्केट फेस्टिव डिमांड कैटर कर लेंगे बिकॉज वहाँ कम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने जब हाईलाइट किया था तो हमने मिड सितंबर एक्सपेक्ट किया था मोडासा का, तो इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल सेल्स गाइडेंस में अभी अंडरकट, तो दैट इज एज अ सरप्राइज सर। मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हिस्टोरिकली फायर इंसिडेंट के बाद हम लोग नागपुर से माल नहीं लेके आए। लगातार हम 4-5 महीने तक नीड बेस नागपुर से माल लेके आए हैं, 50-50-100 कंटेनर लेके आए हैं। लेकिन जब प्राइम्स की बात होती है तो प्राइम्स का एक ट्रक 3 लाख रुपए का होता है, और नागपुर से यहाँ तक माल लाना, यानी राट्रा तक माल लाना, अहमदाबाद तक माल लाना, वो कॉस्ट कर जाता है 80-90 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए ट्रक का कॉस्ट आ जाता है उसका। और हमने उस थर्ड पार्टी से भी करवाया था। तो गाइडेंस के नंबर्स का जहाँ तक सवाल है, जस्ट अ मिनट। तो जहाँ तक गाइडेंस का सवाल है, वो वी अंडरस्टैंड गाइडेंस हमने 2-3 कारणों से एग्रेसिव रखी थी। एक ये था कि हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारा प्लांट चालू हो जाएगा। प्लांट जल्दी चालू होता था तो हम मार्केटिंग एंडीवर भी टाइमली रिलीज करते थे। प्लांट जल्दी चालू हो जाता था तो हम अपने एसएनडी अटेम्प्ट्स भी टाइमली रिलीज करते थे। अभी ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से क्योंकि हमको प्रोडक्ट बास्केट कंप्लीट मिल जाएगी, तो मंथ ऑन मंथ इसके बाद इम्प्रूवमेंट ही आएगा। और ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि लास्ट ईयर के Q4 से इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ये तो सीक्वेंसिकल दिखेगा, जैसे अभी Q2 में Q1 से सीक्वेंसिकल दिखेगा। ओके ओके ठीक है। तो आपको आई मीन ऑफ कोर्स आपने बोला कि इट्स नॉट इजी टू गेज, बट लॉस ग्राउंड रिकवर करने में ऑन अ कंजर्वेटिव साइड कितना टाइम लग जाएगा हमें, जितना भी कस्टमर बेस वी हैव लॉस्ट? यही तो असेस करना है कि अब जब सप्लाई चेन स्टेबल होगा तो हम पर मंथ कितना गेन कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम 2 तरीके के खर्चे कर रहे हैं। एक तो हम टीवी एडवर्टीजमेंट रिलीज कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने फिल्म फेयर अवार्ड में भी हमारा इंटीग्रेशन भी देखा होगा और टीवी एड भी नोटिस किया होगा। और दूसरा, अभी तक हम पिछले लगातार 11 महीने से ट्रेड और चैनल को रिटेन करने के लिए हम मार्केट में लगभग एवरेजली 2% पैसा एडिशनल खर्चते रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो जो पैसा हम खर्च रहे हैं अगले 6 महीने तक हम उसको ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, बल्कि एसएनडी पे अपनी ताकत बढ़ाएंगे और मार्केटिंग पे अपनी ताकत बढ़ाएंगे और प्रोडक्ट मार्केट पे अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वो असेस करेंगे तो भी कंजर्वेटिव साइड पे अगर मैं बोलूँ तो from here we can say 6 to 7 months में we expect to recover our lost number. Okay, great. And sir, gross margins, how do you see the outlook? I think pricing product basket का तो कुछ ज़्यादा increase नहीं हुआ है based on your presentation. तो gross margin stable रहेगा या वहाँ भी improvement लगता है? कंसिडरिंग हमारा जो एस्टिमेशन है उस हिसाब से ऑलमोस्ट इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 26%। कुछ ज़्यादा आगे पीछे वी डोंट एक्सपेक्ट मच चेंज फ्रॉम। ओके एंड सर कैपेक्स में अभी ये कितना हो गया, कितना पेंडिंग है इस साल का? आपने आई थिंक लास्ट टाइम गाइडेंस दिया था 30-35 करोड़ मोडासा प्लांट के लिए रखा था, राइट? तो वो पूरा हो गया या अभी कितना पेंडिंग होगा उसमें से? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पोर्शन पूरा हो गया है। कुछ पोर्शन Q3 में आएगा क्योंकि हमने अक्टूबर में ट्रायल रन शुरू किया है, तो थोड़ा बहुत अक्टूबर दैट इज Q3 में आएगा, जो कि होगा मतलब 7-8 करोड़ की रेंज। ओके एंड सर ये आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे नॉन पाम ऑयल बेस्ड, सो उसमें कैसा ट्रैक्शन है और वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा या अभी जस्ट पायलट बेसिस पे ही स्टार्ट किया है? नहीं, मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। हमने पॉपकॉर्न जो है आज से 5 महीने पहले गुजरात में लॉन्च किया था। तो लॉन्च फेज में उसका रन रेट वाज 53 लाख
and subsequent sale जो sustainable sale है, that is coming to the average of 40 to 43 lakhs. So by all the yardsticks, anything where subsequential sales is more than 60% of launch phase is perceived as सक्सेसफुल लॉन्च. सिमिलरली हमने वेफर बिस्किट लॉन्च किया, उसका लॉन्च फेज वो भी हमने गुजरात में किया था, तो उसका लॉन्च फेज में सेल हुआ 53 lakhs एंड सब्सिक्वेंटली उसका 42 lakhs का सेल आ रहा है. तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अभी हम नागपुर से भी रिलीज करने वाले हैं नॉन कोर स्टेट्स के लिए. थर्ड, हमने जीरा पापड़ लॉन्च किया है, तो उसको लॉन्च किए 2 महीने ही हुआ है. और एक सेकंड अक्टूबर का बॉक्स था 400 रुपये. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको थर्ड जो लॉन्च किया प्रोडक्ट उसका भी वैल्यू आपको बता देता हूँ. वो लॉन्च फेज में है. फर्स्ट 3 months आर सपोज टू बी लॉन्च फेज. 20 लाख, सितंबर में 1 करोड़ 19 लाख और अक्टूबर में 1 करोड़ 5 लाख. तो जीरा पापड़ हमने अगस्त एंड में लॉन्च किया था, तो 20 लाख था. सितंबर में 1.19 करोड़ था एंड अक्टूबर में 1.05 करोड़. ओके ओके. तो बेसिकली यू वांट टू ग्रो, मतलब ये पोर्टफोलियो ग्रो इंटेंसिवली आप ट्राई कर रहे हो सो दैट पाम ऑयल डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो. इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? या दैट अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट. ओके ओके. तो ऐसा है प्रोडक्ट कि हम हमारे सिंपल यार्डस्टिक्स हैं. एनीथिंग व्हिच इज ट्रेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल. साइमल्टेनियसली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं. तो इन नेक्स्ट 3 to 5 years वी इंटेंड परसेंटेज टर्म में पाम ऑयल डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन वी शुड रिड्यूस बाय 25% नेक्स्ट 3 to 5 years. तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है. स्केलेबल प्रोडक्ट होगा, इट्स गोइंग टू बी प्रोडक्ट होगा, वेदर इट विल हैव सिनर्जी विद आवर एग्जिस्टिंग चैनल और नॉट. तो ये 4-5 फैक्टर ध्यान में रखते हुए. ओके ओके. एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एक्विजिशन में सर सो बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्विजिशन टारगेट कर रहे हैं? एंड रिलेटेड टू दैट, तो वो फोकस स्टेट में आप देख रहे हैं या कोर स्टेट्स में आपका टारगेट होगा? तो हमारा टारगेट हम अभी सब जगह पे इवेल्युएट कर रहे हैं, बट प्राइमरली टारगेट कोर में है. कोर स्टेट्स में? हाँ, इन अ सिमिलर काइंड ऑफ. ओके ओके. एंड आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे होंगे राइट? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग तो आई थिंक ऑलरेडी यू हैव इनफ कैपेसिटी, सो योर फोकस विल बी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड राइट? देखिए, मैंने आपको पहले बताया जिस तरीके से हम नया प्रोडक्ट यूज करने के लिए जो यार्डस्टिक यूज करते हैं, इसी तरह हम एक एस्पिरेशन करते हैं एज ए ब्रांड कि हम इनसाइड होम कंजम्पशन का प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट बास्केट में प्रोमिनेंट होना चाहिए. सिंस गुजरात में ब्रांड टू रेकन विद, तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, बाय डिफॉल्ट ये प्रायोरिटी बन जाती है कि हम जहाँ पे वीकर ब्रांड है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की बजाय यहाँ पे करें. एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, गुजरात में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्टेबल है और काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है. तो प्राइमरी हम डिस्ट्रीब्यूशन से एक्विजिशन नहीं सोच रहे हैं. हम ऐसी कैटेगरी है जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी को कैनिबलाइज नहीं करती है, नंबर 1. नंबर 2, वो हमारे डार्क विजन के फिटमेंट में आती है कि मैं इनसाइड होम कंजम्पशन का ब्रांड कैसे बनाऊं. इट विल नॉट बी सेम कैटेगरी के, तो हम मास्टर ही हैं. इट विल बी सिमिलर. ठीक है. ओके ओके, गॉट इट. थैंक्स. Thank you. The next question is from the line of Dharmil Shah from Dalmus Capital Management. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. मेरा पहला क्वेश्चन था, ये जीएसटी में जो भी
चेंजेस आए हैं उस पे यूनिट इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ा है? जैसे चैनल मार्जिन में कुछ फर्क पड़ा है? रिटेलर को जैसे पहले 0.5 रुपीज पर पैकेट बेनिफिट मिलता था प्रॉफिट, वो कुछ चेंज हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मार्जिन चेंज हुआ है? एंड फाइनली चैनल मार्जिन में हमारा रिटेंशन गोज अप बाय 0.5%। हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर को 7.5% दे रहे थे क्रॉस लेवल पे, तो क्योंकि 12% जीएसटी था तो उसके घर में 0.9% कट के 6.6% आता था उसके घर में। अभी हम उसको 7% मार्जिन दे रहे हैं, तो 7% के ऊपर 5% कम होके भी उसको 6.6 ही आता है। तो इफेक्टिवली कंपनी का रिटेंशन गोज अप बाय 0.5%। एज फार एज रिटेलर इज कंसर्न, तो रिटेलर को उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। पहले भी हम 51 रुपीज की स्ट्रिप देते थे, अभी भी हम 51 रुपीज की स्ट्रिप दे रहे हैं। बड़े पैक्स के अंदर हमने कंज्यूमर को पास ऑन किया है जीएसटी का बेनिफिट, तो उसका कंपनी को नेट नेट रियलाइजेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से मिला, कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। ओके, समझ गया। दूसरा चीज था, एक आपने पिछले कॉन कॉल में बोला हुआ है कि पोटैटो का स्टॉक अंदाज से 8 to 9 मंथ्स चलता है अपने वेयर हाउस में। तो अभी जैसे हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होगा जनवरी में, तो अभी अगर मार्केट से हम लोग बाई करेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा पोटैटो के लिए, यार ग्रॉस मार्जिन फिर कम हो जाएगा या कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा? पोटैटो में तो ये सीजन का कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब रेट का कुछ फिक्स नहीं होता है। सीजन में अभी हमारा जो बुकिंग होता है वो फिक्स होता है रेट। बाद में हम 9 महीने या 10 महीने तक का क्वांटिटी हम परचेस कर लेते हैं। बाद में उसकी आयु पूरी हो जाती है, तब अलग प्लेस से पोटैटो आता है। अभी ये जो मंचर की साइड में से पोटैटो आता है, तो उसका रेट कभी कभी बारिश के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, तो वो मौसम के हिसाब से उसका रेट अप डाउन रहता है। और उसके बाद आता है छिंदवाड़ा का, और उसके बाद इंदौर का, और वापिस मोड़ासा का। वैसा पूरा साल का पोटैटो का अवेलेबिलिटी रहता है। शर्मिल भाई, टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी तो हमारे पास मोटा मोटा हमारे वेयर हाउस के अंदर ही 15 दिसंबर तक का पोटैटो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद नई क्रॉप का रेट क्या खुलता है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, और वो किसी के भी हाथ में नहीं है। लास्ट ईयर Q4 के अंदर डिस्प्रपोर्शनेटली ऊपर चले गए थे पोटैटो के रेट, तो ये तो हमारे पास 15 दिसंबर तक का कवर है। वी एक्सपेक्ट कि उस समय जो है कंट्रोल रहेंगे। ओवरऑल हमारा 11% कंट्रीब्यूशन आता है पोटैटो वेफर का। वेटेड एवरेज में पिछले साल इसलिए तकलीफ दे गया था हमको Q4 में, बिकॉज वन तो फायर इंसिडेंट हो गया, दूसरा पोटैटो का रेट 3.5 गुना हो गया था, तकरीबन 35 रुपए किलो तक चला। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कंट्रोल्ड रहेगा। हमारा मोडासा प्लांट में तो कोल्ड स्टोरेज है, तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन नागपुर में हम मोडासा से पोटैटो भिजवाते हैं, तो अभी जो शुगर इंक्रीज का प्रॉब्लम रहता है, तो उधर मंचर से हमको लेना पड़ता है। हमारे पास स्टॉक है तो भी लेना पड़ता है, वैसा होता है। और वेफर में आपने कुछ प्राइस चेंजेस किए थे 2 क्वार्टर पहले, वो अभी भी वही है या कुछ उधर भी चेंजेस किए आपने वापस? बेसन में, वेफर में अगर आप देखोगे तो वेफर में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ एज कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ इज हायर, तो दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ रफली 6% हायर जो है वो हमने अपना रियलाइजेशन इंप्रूव किया है वेफर में। हमने अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाया है। हाँ, मतलब चैनल इंसेंटिव कम कर दिया है आपने? चैनल नहीं, ट्रेड इंसेंटिव कम कर, माने दुकानदार का प्राइसिंग जो है वो बढ़ा दिया है। चैनल को तो फिक्स्ड मार्जिन ही रहता है धर्मिल भाई। ओके। चैनल माने डिस्ट्रीब्यूटर का तो फिक्स्ड मार्जिन ही है। जो ट्रेड है, यानी ट्रेड माने रिटेलर का प्रॉफिटेबिलिटी हमने थोड़ा उसमें रिड्यूस किया है।
ओके, समझ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू धर्मेंद्र। Thank you. The next question is from the line of Devang Mehta from Bay Capital. Please go ahead. हेलो हेलो। हेलो देवा। हाँ, नमस्ते विपिन जी, नमस्ते नवीन जी। एक्चुअली दिस जर्नी ओवर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू guys have guided, how eventually you have executed and what is the outcome. So just wanted to understand because focus core states में हम लोग split distribution करने की try कर रहे थे, that hasn't worked. Focus states में growth is lagging despite we being able to supply through Nagpur facility. We were supposed to have national ambassador, वो हमने कुछ नहीं किया है. We were supposed to do a lot of online initiatives. I was checking online, Amazon, Flipkart, कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ऑन वेबसाइट. whether there is some inventory available on quick commerce. So overall execution at a lot of place seems to be thoda disappointing. Just wanted to hear your overall thoughts. How do you think to drive the business over next 3 to 5 years? पहले तो मैं आपको थोड़ा क्वांटिफाई करके नंबर्स बताता हूँ. ई कॉमर्स का हमारा लास्ट 6 क्वार्टर्स का जो प्रोग्रेशन है 37 लाख, 63 लाख, 1.19 करोड़, 1.03 करोड़, 1.53 करोड़ एंड 1.92 करोड़. अभी ये जो Q2 है उसमें हमने 1.91 करोड़ किया है ई कॉमर्स से. H1 वर्सेस H1 देखें तो 1 करोड़ से बढ़ के 3.5 करोड़ हुआ है हमारा ई कॉमर्स में. मॉडर्न ट्रेड में हमारा प्रोग्रेशन रहा है 23 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 29 लाख, 78 लाख एंड 1 करोड़ 32 लाख. ये उस सिचुएशन के बाद है जब हमारा ई कॉमर्स में फिल रेट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. तो ये तो ई कॉमर्स का जहाँ तक सवाल है उसका जवाब है ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड का. तो फोकस स्टेट्स के अंदर जो हमारे नंबर्स में थोड़ा ग्रोथ नहीं है उसका रीजन हमको मालूम है. देखिए फोकस स्टेट्स में हमारा राजस्थान जैसे आता है तो राजस्थान आज की तारीख में सप्लाई चेन में परसेंटेज टर्म में सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड था हमारा. वेस्टर्न महाराष्ट्र इम्पेक्टेड था, देन वेस्टर्न एमपी भी इम्पेक्टेड था उसके कारण. फोकस स्टेट के अंदर हम लोग ने जो डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट बढ़ाने का एक लिया था टास्क लिया था उसको हमने पॉज किया. तो हमने हमारी क्योंकि बहुत सारी एनर्जी गुजरात के डीलर्स को रिटेन करने में जा रही थी. जैसे मैं एक और नंबर क्वांटिफाई करके आपको बताता हूँ. गुजरात के अंदर हमने पिछले 11 महीने में फायर इंसिडेंट के बाद हमने पूरा अपना इस चीज़ में ताकत लगाया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमको नहीं छोड़ के जाना चाहिए. पूरे 11 महीने में 3 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो छोड़ के कंपटीशन में गए. तो हमारा डिसप्रोपोर्शनेट फोकस गुजरात में रहा टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस. दैट ऑल्सो लेट अस डाउन इन फोकस स्टेट्स एज वेल. बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड जब हमारे इधर वाले प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम अपनी एनर्जी सही तरीके से डिप्लॉय कर पाएंगे फोकस स्टेट्स में. No, in terms of more so on the whole call, you're trying to explain why capacities are important. But when I see we have facility in Nagpur which could have supported अपना फोकस वाले स्टेट्स है जो एमपी है, राजस्थान टू सम एक्सटेंट और यूपी टू सम एक्सटेंट. तो वो सारे स्टेट्स मतलब समवेयर इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग distribution rather than the production capability? ओवरऑल जब कंपनी का कोर डिस्टर्ब हुआ समझ लीजिए आप, तो ऐसा हुआ कि उन स्टेट्स के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो हमारा फोकस जाना चाहिए फ्रॉम हेड ऑफिस उसमें जरूर कॉम्प्रोमाइज हुआ है.
लेकिन फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स उन स्टेट से भी हमको सीक्वेंसिकल ग्रोथ करेंगे हम। ऑल्सो वेफर्स वी हैड अ लॉट ऑफ, हमारे प्लान्स काफी थे कि वेफर्स हम 20-25% ग्रो करेंगे 3-4 years. That has also not worked out. तो मतलब a lot of places I could see कि a lot of strategically how, मतलब अगर आप 2-3 साल का रोड मैप ले कर सकते हैं, आप क्या फोकस एरिया है या क्या करना चाहते हैं, that would be helpful. ठीक है, 2-3 साल के रोड मैप की अगर मैं बात करता हूँ, गुजरात के अंदर अभी हम जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर 2,25,000 आउटलेट हम लोग केटर करते हैं विद ए सेट ऑफ 324 डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट नाउ। गुजरात में हमको दो तरीके से बिजनेस ग्रोथ करना है। पहला, हमको विड्थ भी बढ़ानी है गुजरात के अंदर, और दूसरा हमको डेप्थ बढ़ानी है। तो अभी जो हमारा थ्रूपुट पर आउटलेट है उसमें हमको नेक्स्ट 2 years में 30-40% का जंप लेके आना है। अब ये होगा कैसे? ये दो तरीके से होगा। पहला, हम एसएनडी में अपने जो एफर्ट बढ़ा रहे हैं उसमें डबल सर्विस जो हम बात कर रहे हैं वो अर्बन के अंदर कंपलसरी कर रहे हैं और रूरल के अंदर हम सिलेक्टिव बीट्स के अंदर डबल सर्विस देंगे। तो उससे ये विड्थ और डेप्थ दोनों इंप्रूव होंगे। फिर हम मार्केटिंग जो स्पेंड कर रहे हैं उससे किसी भी ब्रांड, हमारे टाइप का जो ब्रांड है उसमें कोर मार्केट में ही बेनिफिट मिलता है। दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो गुजरात के अंदर वी एस्पायर की नेक्स्ट 2 to 3 years में हमारा जो रन रेट आए वो पर मंथ का दैट शुड गो बियॉन्ड 125 crores। नाउ कमिंग टू द नॉन कोर स्टेट, नॉन कोर स्टेट में हम नागपुर को सेंटर रखते हुए एक रोल मॉडल करना चाहते हैं जहां पे उसके 350 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम अपना फुटप्रिंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं। अब रही इसके अलावा हम और क्या स्ट्रेटेजिक चीजें कर रहे हैं, तो जैसे उत्तराखंड में हमने एक अभी थर्ड पार्टी सेटअप किया है और उधर हिरियूर में साउथ में किया है। वहाँ छोटे छोटे हब ऐसे बना के जहाँ पे हमें केपेक्स की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हम ऐसे क्लस्टर क्रिएट करेंगे जहाँ 200-200 किलोमीटर के एरिया में हम अपना फुटप्रिंट नेटवर्क एक्सपेंशन और विड्थ और डेप्थ पे काम करेंगे। रही प्रोडक्ट बास्केट की बात, तो प्रोडक्ट बास्केट के अंदर अभी हमारा बहुत हेल्दी प्रोडक्ट मिक्स है। अगर आप देखेंगे कि गाठिया का कंट्रीब्यूशन 25-26% है, नमकीन का कंट्रीब्यूशन 25-26% है। वेफर हमारी एस्पायरिंग कैटेगरी है। वी अंडरस्टैंड कि वेफर के अंदर जो हमने एग्रेसिव स्टांस ले रखा है वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जस्ट अ मोमेंट। Yes. Just a moment. I'm so sorry. Yes. वेफर्स के अंदर जो हमने एग्रेसिव स्टांस लिया, वी अंडरस्टैंड कि हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है हमारा। उसमें कुछ हमने जो प्राइस हाइक लिया तो प्रोबली प्राइस हाइक इसलिए लिया हमने कि भाई कंपटीशन और हमारे बीच में 17% का गैप था, तो कि उसको रिड्यूस करते हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट है। कुछ हमारे जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन रहे तो उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हीरो प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जाता है, उसमें इम्पैक्ट रहा। नागपुर में वेफर्स को लेके अभी हम वहाँ पे एक प्लांट और डाल रहे हैं, मतलब उसी फैक्ट्री के अंदर एक और कैपेसिटी वहाँ पे बढ़ा रहे हैं जो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो नॉन कोर में उसके बाद वहाँ पर भी वेफर्स का हमारा सेल बढ़ेगा, तो पीछे पीछे अदर प्रोडक्ट्स का भी सेल बढ़ेगा, क्योंकि नॉन कोर में हमारा परसेंटेज कम में वेफर का कंट्रीब्यूशन हेल्दियर है। Correct. Fine. Thanks. I'll take it offline. We'll connect. Thank you very much for answering the question. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to management for closing remarks.
I would like to thank everyone for joining the call. I hope we have been able to respond to all your questions adequately. For any further information, we request you to please get in touch with our investor relation team. Stay safe, stay healthy, and thank you once again for joining the call. Thank you. Thank you. On the behalf of Emkay Global Financial Services Limited, that conclude this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.